Hello students, these days we are doing certain MCQ sessions for prelims 2021. In the last 4 sessions we did questions on ancient India and art and culture. Today, as per the demands of few students, I have included the questions of Indian polity, modern Indian history and art and culture. I have developed this mixed PPT kind of thing, mixed MCQ session, so that we can do all the three. Let us start. Question number 1. In representative democracy, the representatives of people, we are talking of representative democracy. In such a democracy, which is also called indirect democracy or electoral democracy, in such a democracy where the people are elected, the representatives of the people are elected by the people. So in such a system, the representatives of people are merely delegates who are tied to the preference of the people, and they are meant to act on the behalf of the people according to their own judgment. हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की. इसमें जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो लोगों के डेलीगेट्स हैं, लोगों ने उन्हें चुन के भेजा है और दे आर टाइड टू द प्रेफरेंस ऑफ द पीपल. इलेक्टोरेट ने जो चाहा है वो करवाने के लिए वो पार्लियामेंट में गए हैं, ये सही है. या कि दे आर मेंट टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, ये तो सही है कि वो लोगों के बिहाफ पे वहाँ काम कर रहे हैं, लोगों ने उन्हें चुन के भेजा है, लेकिन लोगों की बात रखते हुए वो अपने विजडम का इस्तेमाल पूरा करेंगे. इनमें से कौन सा सही है? Obviously, second is correct, first is not correct. Even though people have elected them, it does not mean that people can demand anything from them to be fulfilled. लोग उनसे कुछ भी नहीं करवा सकते. वो जो वैलिड डिमांड है, जो लॉफुल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसी आवाज़ को वहाँ उठाएंगे. लोगों की मंशा पे, लोगों की एक यू कैन से एक मेजोरिटेरियन व्यू के हिसाब से वो काम नहीं करेंगे. जो वैलिड है अपने जजमेंट से तय करेंगे, और उनका जजमेंट यहाँ जजमेंट का मतलब ये है कि उनका जजमेंट तय हो रहा है संविधान से, कानून से, उनके पर्सनल सोच विचार से नहीं. तो जब ऐसा होता है तो ये मान के चला जाता है कि ये तो बात सही है कि वो लोगों के विचार वहाँ रखेंगे, बट वो लोगों के वो विचार वहाँ रखेंगे, उनके लिए लड़ाई करेंगे पार्लियामेंट में जो सही है लोगों के लिए. लोगों की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स वगैरह हैं, अनलॉफुल डिमांड्स हैं, या जो मेजोरिटेरियन, इट मे बी पॉसिबल दैट द मेजोरिटेरियन व्यू मे नॉट फ्लो इन कॉन्सोनेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा सोचें, ऐसा हो जाए, और हो सकता है वो संविधान से मैच ना करता हो, तो उस बात को वो रखने के लिए बाध्य नहीं है. ये बात अलग है, लोगों ने उनको चुना है. तो सेकंड सही है, पहला सही नहीं है. The representatives of the people act for the interest of the people by using their own wisdom. They may not represent the invalid demands of the people in general, even though people have elected them. Consider the following statement. The removal of untouchability could not become a mass issue in 19th century. Modern India का क्वेश्चन है. 19th century में removal of untouchability, even though it was raised by various reformers, it could not become a मास इशू. पहला स्टेटमेंट सही है, गलत? दूसरा, द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द टाइम कुड नॉट डेवलप कनेक्ट विद द मासेज. उस समय के लीडर्स थे वो मासेज से कनेक्ट डेवलप नहीं कर पाए थे. सो फर्स्ट इज करेक्ट. इवन दो विवेकानंद ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अनटचेबिलिटी, उसके बारे में वो भी बात करते थे. ज्योतिबा फुले डिड अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, but no such movement could be developed by anybody, whether it was Jyotiba Phule or Vivekananda or any other leader, Dayanand Saraswati, etc., whereby they could develop a mass movement of people. They were more reformer. They wanted to government to intervene with the help of law to remove the problems. They could not develop any mass movement. The mass movement could be developed only when Gandhiji came on the scene. Then untouchability became the part of, removal of untouchability became the part of a larger freedom struggle. So this is correct, even though the issue was raised, but it could not become the part of mass movement. It is because the social reformers could not develop connect with the masses. They always were dependent upon the government to bring certain legislation so that such an issue can be tackled well. So both are correct.
Untouchability as an issue of social reform has to wait until the beginning of Gandhian era in the public life after World War I. Lacking in a broad social base, the reformers of the early 19th century thus exhibited an intrinsic faith in the benevolent nature of colonial rule. There was very little or no attempt to create reformist social consciousness at the grassroots level around that time. They were more relying on the method of legislation for imposing reform from above. तो वो कानून के ज़रिए सरकार के इंटरवेंशन से करवाना चाहते थे. 19th सेंचुरी में मास मूवमेंट डेवलप नहीं हो पाए. दोनों सही हैं. नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के बारे में 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी. सभी पार्टियों के नुमाइंदे मिलके बैठते हैं. उधर साइमन कमीशन काम कर रहा है. साइमन कमीशन 1919 के कानून को रिव्यू करने आया था और 1929-30 में जो नया कानून भारत के लिए आना है उसमें क्या क्या और पहलू होने चाहिए उसके लिए रिकमेंडेशन दे देगा. लेकिन भारतीय साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि साइमन कमीशन में भारतीय मेंबर नहीं लिए गए हैं. तो उन सब ने मिलकर अपना संविधान बनाने की कोशिश की और एक नेहरू कमेटी चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू अपॉइंट हो जाती है. अब नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है. उस रिपोर्ट के अनुसार it recommended that India should be a federation based on linguistic provinces and provincial autonomy. ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आ जाते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, ध्यान नहीं देते हैं, बारीकियों पे ध्यान नहीं देते हैं. नेहरू कमेटी ऑफ 1928 recommended that India should be a federation based on linguistic provinces and provincial autonomy. On the basis of language, provinces can be there and to a large extent there should be a provincial autonomy and there can be a federation. First statement. Second, it recommended that reservation of seats for religious minorities in proportion to their population. You can say, and Morley Minto reforms had given Muslims पृथक निर्वाचन का अधिकार और separate electorate, but they said the minorities can be given seats in the proportion of their population, not as per their political value. Muslim League wanted reservation of seats as per their political value, but they said it can be as per their numerical numbers, not as per their political value. So yes, reservation, everybody shall vote for everybody. There shall be joint electorates, but to somehow overcome the whatever जो एक you can say एक fear है minorities के दिमाग में कि वी विल बी ओवर पावर्ड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी, उसको एड्रेस करने के लिए माइनॉरिटीज़ को सीटें दे दी जाएंगी लेकिन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाएंगी, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से नहीं दी जाएंगी. तो सभी लोग सबके लिए वोट करेंगे. पृथक निर्वाचन में सेपरेट इलेक्टोरेट में तो मुस्लिम्स के लिए वोट करेंगे, ऐसा था. उन्होंने कहा सभी जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, लेकिन हाँ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो सकता है काउंसिल्स में, बट एज पर द नंबर, नॉट एज पर द वैल्यू. तो बोथ आर करेक्ट. नेहरू रिपोर्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मना किया था और जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए कहा था, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन की बात की थी. बोथ आर करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स, द नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट इंडिया शुड बी अ फेडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एंड ऑटोनॉमी. The election should be held on the basis of joint electorates, that seats in central and provincial legislature should be reserved for religious minorities and the proportion to their population. The report recommended that separation of Sindh from Bombay and constitutional reform in the north-west frontier province. So these are few points of Nehru report. Next question. Consider the following statements about cultural history of medieval India. We are talking of medieval India. The cultural assimilation of Indian and Persian art and architectural forms. The cultural assimilation of Indian and Persian art and architectural forms was evident both at all India level and regional level. जो medieval India की art and architecture है उसमें जो Indian features और Persian features, Indo-Persian art है, उसका reflection ऑल इंडिया लेवल पे भी था और रीजनल लेवल पे भी था. पहला स्टेटमेंट. दूसरा, द मुगल रूलर्स एम्फेसाइज्ड टर्को मंगोलियन आर्ट फॉर्म्स. जब मुगल आते हैं तो वो टर्किश और मंगोलियन फीचर्स का एक एमलगेमेशन अपनी बिल्डिंग्स में दिखाते हैं. तो कौन सा सही है? ये सही है कि जो ऑल इंडिया लेवल पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, मुगल रूलर्स बना रहे हैं, दिल्ली सुल्तान बना रहे हैं, उसमें भी पर्शियन फीचर्स हैं,
लेकिन जो रीजनल लेवल पे बन रही हैं इन द फॉर्म ऑफ बीजापुर, गोलकुंडा एट्सेट्रा, अवध, लखनऊ वगैरह, वहाँ पर भी फीचर्स हैं, वो भी पर्शियन हैं, तो इंडो पर्शियन है। तो इंडो पर्शियन आर्ट वॉज द फीचर ऑफ बोथ एट ऑल इंडिया लेवल भी ऑल्सो एट रीजनल लेवल ऑल्सो। तो ये दोनों जगह एविडेंट हो जाती है मेडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। लेकिन मुगल रूलर्स वो टर्को मंगोलियन आर्ट फॉर्म्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, दे वर ऑल्सो गाइडेड बाई पर्शियन फीचर्स, यू कैन से। वो पर्शियन फीचर्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट टर्को मंगोलियन फीचर्स, इवन दो एसेंशियली उनकी जो लाइनेज है वो मंगोलिया से बिलोंग करती है। तो इट वॉज पर्शियन फीचर्स। Second is not correct. Cultural assimilation was evident in structures, art forms with Delhi Sultans, Mughals as well as regional rulers like Maharashtra, Gujarat, Bengal, Jaunpur. Mughals used Persian features, not Turco-Mongolian features. Certain festivals and states, ये कहाँ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आ जाते हैं। तो बूढ़ी ठाकुरनी यात्रा फेस्टिवल है, गंगा सागर मेला है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है। अब इनको देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। बूढ़ी ठाकुरनी यात्रा बंगाल में होता है, गंगा सागर उत्तर प्रदेश में होता है, चेरी ब्लॉसम मेघालय में होता है, कौन सा सही है? सो बूढ़ी ठाकुरनी इज़ द यू कैन से फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। बहरामपुर शहर है जिसको सिल्क सिटी भी कह देते हैं, वहाँ पर ये लोकल डीटी हुआ करती हैं, उनके लिए फेस्टिवल होता है बूढ़ी ठाकुरनी यात्रा। इट इज़ नॉट बंगाल, इट इज़ उड़ीसा, वहाँ का लोकल फेस्टिवल है। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में होता है, नॉट उत्तर प्रदेश। इट इज़ अ वेरी यू कैन से फेमस मेला इन वेस्ट बंगाल, गंगा सागर मेला। एंड चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ओबियसली मेघालय का हुआ करता है, तो ओनली 3 इज करेक्ट। चेरी ब्लॉसम इज़ अ वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ कल्चर ऑफ मेघालय। इट इज़ वेस्ट बंगाल, इट इज़ अ वेरी बिग यू कैन से, बहुत बड़ा आयोजन होता है वेस्ट बंगाल का गंगा सागर मेला, और बूढ़ी ठाकुरनी फेस्टिवल हुआ करता है उड़ीसा का। It is celebrated in the Behrampur city of Odisha, etc. etc. According to historian, the preparation for the festival start with the Shivratri. Details हैं इंटरनेट से लिए हुए हैं, but it is a festival of Behrampur city of Odisha, which is also the silk city. वहाँ का होता है। गंगा सागर मेला is one of the biggest festival of India in 13-15 January. Every year attracts thousands of pilgrims from all over the world. The होस्टिंग स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल रिसीव्स, बहुत बड़े स्तर पे बंगाल में हुआ करता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ऑटम चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मेघालय गवर्नमेंट, इज एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन मेघालय। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस माइट सरफेस इन योर एग्जाम। Consider the following statements about anti-defection law. दल बदल कानून added by 52nd Constitutional Amendment Act 1985 in the form of Schedule 10 in the Constitution called दल बदल कानून। अब उसके बारे में है anti-defection law के बारे में। The anti-defection law gives priority to the stability of the government in preference to the freedom of speech to the members of legislature. Anti-defection law का उद्देश्य सरकारों की स्टेबिलिटी पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं जो पार्लियामेंट में MP MLA बने हैं, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखी इस कानून ने जितना कि सरकार की स्टेबिलिटी को ध्यान दिया गया है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। लोकसभा का स्पीकर इसके एम्बिट में नहीं आता, उसको थोड़ा एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो कौन सा सही है? बिल्कुल सही है। स्टेबल गवर्नमेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्टेबल होंगी। वैसे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हम फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सरकार अगर बहुमत खोती है तो सरकार को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट एज फार एज पॉसिबल गवर्नमेंट शुड कंप्लीट देयर फुल टर्म, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्टेबल होंगी तभी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बन पाएंगी, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनेंगी और एग्जीक्यूट होंगी तभी अल्टीमेट डेवलपमेंट सीख किया जा सकेगा, संभव हो पाएगा। होता क्या था, लोग अपनी पार्टियां छोड़ दिया करते थे और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। वो गवर्नमेंट्स जो मार्जिन पे टिकी हुई हैं, मान लीजिए 272 273 MP चाहिए और 275 उनके पास हैं, और 3 लोग अपनी पार्टी छोड़ दें, सरकारें गिर जाया करती थी। सिर्फ 3 लोगों के करप्शन की वजह से द होल गवर्नमेंट यूज्ड टू कम डाउन।
उसको एड्रेस करने के लिए कि फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, लोग दल बदल ना करें, तो कानून बनाया गया। तो ओबियसली जब ये कानून बना तो उसमें ये भी है कानून में कि अगर पार्टी ने कोई व्हिप जारी की है किसी मुद्दे पर, कोई मुद्दा हो उस पर पार्टी ने व्हिप जारी की है कि हमारी पार्टी के एमपीज़ को पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर यस बोलना है, तो सारे मेंबर्स उस पार्टी के व्हिप से बाउंड हो गए हैं। भले ही इंडिविजुअल लेवल पे वो उस व्हिप को लाइक ना कर रहे हो, उनका व्यू कुछ और कह रहा हो, लेकिन पार्टी ने व्हिप जारी की है तो उनको व्हिप फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो व्हिप के अगेंस्ट वोट दे देंगे तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ। Obviously the purpose is this, that when it was framed, the stability to the government is given more preference to the freedom of speech of the members, even though जो members of parliament हैं उनको freedom of speech एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है कि वो चाहें तो पार्लियामेंट में अपने फ्रीडम से काम कर सकते हैं, लेकिन जब एंटी डिफेक्शन लॉ की बात आती है तो उनका फ्रीडम सेकेंडरी हो जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कॉम्प्रोमाइजेज विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज करेक्ट। स्पीकर पे लागू नहीं होता। स्पीकर जो पार्लियामेंट का स्पीकर होता है वो न्यूट्रल माना जाता है, एक्चुअली होता है नहीं होता दैट इज डिफरेंट मैटर। वो उसका जो इंस्टीट्यूशन है वो न्यूट्रल माना जाता है। और अगर स्पीकर, ऐसा कन्वेंशन के अनुसार देखा गया है कि स्पीकर जब ओबियसली किसी पार्टी का होगा, स्पीकर जब स्पीकर बन जाता है तो वो अपनी पार्टी से संबंध तोड़ लेता है, सिंबॉलिकली तोड़ लेता है, एक्चुअली तोड़ लेता है, वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर किसी मेंबर ने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ी है तो उसकी लोकसभा की मेंबरशिप भी चली जाएगी, राज्यसभा की मेंबरशिप भी चली जाएगी। ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि अगर स्पीकर ये दिखाने के लिए कि वो न्यूट्रल है, अपनी पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा देता है, तब भी वो स्पीकर रहेगा, उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। नीलवन संजीवा रेड्डी वॉज द फर्स्ट, ही वॉज द वन हु रिजाइंड फ्रॉम हिज मेंबरशिप ऑफ द पार्टी व्हेन ही बिकेम स्पीकर ऑफ लोकसभा। नीलम संजीवा रेड्डी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और भी कुछ लोगों ने दिया है, बट कॉमन हैपनिंग नहीं है, स्पीकर नहीं देते पार्टी से इस्तीफा, बट एक कन्वेंशन है, चाहे तो दे सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर व्हिप जारी हुई है, किसी पार्टी ने कह दिया कि इस बिल पर हम यस बोलेंगे, और बिल पे हो जाती है बराबरी, और जब बराबरी होती है तो स्पीकर के पास होता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट बराबरी को तोड़ने वाला वोट होता है, तो स्पीकर तभी वोट कर सकता है जब किसी बिल पर, मुद्दे पर बराबरी हो जाए, अदरवाइज स्पीकर का राइट टू वोट खत्म हो जाता है जैसे वो स्पीकर बनता है। अब मान लीजिए स्थिति ये है कि स्पीकर ने अपनी पार्टी की मेंबरशिप नहीं छोड़ी है और आज मौका आ गया है कास्टिंग वोट का, और उसके वोट से ही तय होना है कि बिल पास होगा या नहीं होगा। तो उस दिन वो अगर पार्टी के व्हिप के खिलाफ भी वोट देगा तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। वैसे ऑर्डिनरी मेंबर हो, अगर वो व्हिप के खिलाफ वोट देगा तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो यस, स्पीकर के ऊपर एग्जेम्पशन है, स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के घेरे में नहीं आता, वो व्हिप के अगेंस्ट ही वोट दे सकता है और वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप से वॉलंटरी डिसोसिएट भी हो सकता है। तो बोथ आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट के बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं। रूल ऑफ लॉ ट्राइज टू एस्टेब्लिश एन अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ ये कोशिश करता है कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो और रिस्पॉन्सिबल हो। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रमोट्स एंड स्ट्रेंथेंस रूल ऑफ लॉ। तो बोथ आर करेक्ट। रूल ऑफ लॉ कहता है सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होनी चाहिए, एंड लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ मैन नहीं होना चाहिए। लॉ वो होगा जो संविधान कहता है, लॉ वो नहीं होगा जो मैन कहते हैं। मतलब लॉ इज सुप्रीम, नॉट द गवर्नमेंट इज सुप्रीम, नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम, नॉट द जुडिशरी इज सुप्रीम। व्हाट इज सुप्रीम इज कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ कहता है जब भी रूल ऑफ लॉ होता है इसका मतलब होता है सारे ऑर्गन्स लॉफुली काम करेंगे, और जो लॉ है वो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है। इसका मतलब है लॉ अप्लाई करने वालों को, लॉ बनाने वालों को ये डर होना चाहिए कि जब भी वो लॉ इस्तेमाल करेंगे या लॉ का मिसयूज़ करेंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, उनको पनिशमेंट मिल सकता है। इसका मतलब अगर रूल ऑफ लॉ का रियल मीनिंग जाने, इट मीन्स इट ट्राइज टू एस्टेब्लिश एन अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर ये डर खत्म हो जाए नागरिकों को या सरकारों को कि लॉ का मिसयूज़ करने से, मैनिपुलेट करने से उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ सही नहीं है। इसका मतलब कानून ठीक से बनाया
नहीं गया है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कानून होना ज़रूरी है, कानून का सही होना भी ज़रूरी है। वो कानून जो व्यवस्था को सही करे, सिर्फ कानून का होना भर सफिशिएंट नहीं, कानून का सही होना भी उतना ज़रूरी है। क्योंकि कानून अगर ऐसा बनाया गया है कि उस कानून को एवेड कर जाए, मान लीजिए लॉ ऐसा बना दिया गया है कि लॉ को, मैंने कोई क्राइम किया है और मैं चाहूँ तो लॉ को बाईपास करके बच सकता हूँ, अगर ऐसा लॉ है, इसका मतलब उस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है। लॉ ऐसे बनाया जाए कि अगर किसी ने कानून ब्रेक किया है, वॉयलेट किया है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसा भी बनना चाहिए कि अगर कानून, वो इनोसेंट व्यक्ति है और गलत फंसा दिया गया है, तो उसे सज़ा मिलनी नहीं चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक फुल्ली रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता। तो ओब्वियसली रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जो रूल ऑफ लॉ अप्लाई करने वाले हैं वो हमेशा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से पेश आएँ। ऐसा है तो रूल ऑफ लॉ है, वरना नहीं है। उन्हें जवाबदेही का डर होना चाहिए, तभी वो कानून को ठीक से फॉलो करेंगे। एंड रूल ऑफ लॉ की जो डेफिनेशन एवी डाइसी ने दी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सेकंड फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून सबके लिए एक सा नहीं है तो ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ नहीं हो पाएगा। कुछ को फ़ायदे हैं, कुछ को फ़ायदे नहीं हैं। अगर कुछ के लिए प्रिविलेजेस हैं, कुछ के लिए विशेषाधिकार हैं, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर ये ऐसा होगा तो ही रूल ऑफ लॉ प्रमोट होगा। बोथ आर करेक्ट। इट इज़ implicit feature of the concept of rule of law given by A.V. Dicey. Consider the following statements about preamble to the Constitution of India. Preamble के बारे में, the preamble was adopted separately in the assembly. पहला statement, it is part of the constitution but it is not the source of power for any constitutional organ. It mentions that constitution has been adopted by the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रियम्बल के बारे में क्वेश्चन है। प्रियम्बल अलग से अडॉप्ट हुआ था, संविधान अडॉप्ट हुआ, उसमें प्रियम्बल अडॉप्टेड मान लिया गया, ऐसा है, ये अलग से अडॉप्ट किया गया था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ये संविधान का पार्ट है, लेकिन संविधान का पार्ट होते हुए भी कोई भी ऑर्गन, चाहे जुडिशरी हो या लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये नहीं कह सकते कि ये जो मैं पावर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये प्रियम्बल से फ्लो हो रही है। Preamble is not the source of power of any organ of the Constitution, even though it is part of the Constitution. It mentions that Preamble में लिखा हुआ है कि भारत का संविधान सभा ने अडॉप्ट किया है। तो इसमें से क्या सही है? पहला सही है, Preamble लास्ट में अडॉप्ट किया गया था, even though it was the first document to be introduced in the assembly called Objectives Resolution। जो पहला डॉक्यूमेंट संविधान सभा में इंट्रोड्यूस हुआ था उसे कहते थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो बाद में चेंज होकर प्रीएम्बल हो गया। संविधान डिस्कस हुआ, डिबेट हुआ, उसमें कई सारे चेंजेस हुए, तो बाद में प्रीएम्बल को भी थोड़ा सा चेंज किया गया। तो पूरा संविधान ठीक से बन जाने के बाद प्रीएम्बल को चेंज करके लास्ट में अडॉप्ट किया गया था। तो ये करेक्ट है। प्रीएम्बल वॉज सेपरेटली अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस में, पहले कह दिया गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस ने कहा प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट डज नॉट मीन कि कोई भी ऑर्गन ये कह सकता है कि ये पावर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रीएम्बल के मीनिंग से निकलती है। नो, जो किसी भी ऑर्गन की पावर है, फंक्शंस हैं, जो उसकी लेजिटिमेसी है, वो संविधान के प्रोविजन से निकलती है, प्रीएम्बल से नहीं निकलती। तो इट इज़ नॉट सोर्स ऑफ पावर फॉर एनी ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन दो इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब ये, अगर संविधान को हम अप्लाई कर रहे हैं और संविधान के किसी आर्टिकल को समझने में एम्बिग्विटी हो रही है, दो मीनिंग आ रहे हैं, तो वो मीनिंग सुप्रीम कोर्ट सही मानता है जो प्रीएम्बल से मैच करता है। इसलिए संविधान को अप्लाई करने में प्रीएम्बल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिना प्रीएम्बल के तो हम शायद फंस जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए प्रीएम्बल से मैच होने वाला मीनिंग सही मीनिंग माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रास्ता दिखाता है हमको। लेकिन फिर भी प्रीएम्बल के, सिर्फ प्रीएम्बल के बेस पे कोई भी ऑर्गन अपनी पावर की लेजिटिमेसी प्रूफ नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट सोर्स ऑफ एनी पावर फॉर एनी ऑर्गन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये गलत है। इट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो पीपल ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थर्ड इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। Only citizens enjoy right to life and personal liberty.
ओनली सिटीजन्स एंजॉय राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 की बात हो रही है। आर्टिकल 21 इज़ नॉट फॉर सिटीजन्स ओनली, इट इज़ बोथ फॉर सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन, सभी के लिए हुआ करता है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21, नो पर्सन, ये आर्टिकल 21 की डेफिनेशन है, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू नॉट रूल ऑफ लॉ एज पर द प्रोसीजर established by law taken from Japanese Constitution। तो आर्टिकल 21 की ये एक तरीके से रिपीटिशन है। नो पर्सन मीन्स एनीबडी वेदर सिटीजन और नॉन सिटीजन, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ हैज एस्टेब्लिश्ड अ प्रोसीजर, फॉलो दैट, वॉट एवर इज द आउटकम इज राइट। इस पे फिर केसेस वगैरह हुए, तो फिर हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये एक अलग सी लड़ाई है। ये तीनों हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, नॉट रूल ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा हुआ है। क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ हमने डिस्कस किया है, ये क्या होता है वी विल डिस्कस। तो ये गलत है एंड ये गलत है, दोनों ही गलत हैं। आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इन्फर्ड राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे संविधान में सबसे ज़्यादा इन्फ्रेंसेस, इसमें सबसे ज़्यादा राइट्स निहित माने गए हैं। आर्टिकल 21, बहुत सारे राइट्स इसमें निहित होते हैं। आर्टिकल 21 पे ही बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, रिट्स और उनके पर्पसेस। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को रिट जारी करने की परमिशन अभी नहीं है, अगर ऐसी होगी तो पार्लियामेंट दे सकता है बाई फ्रेमिंग अ लॉ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब पार्लियामेंट कोई लॉ बना के उनको पावर दे देगा। जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाएगा तब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रिट जारी नहीं कर सकते। हाई कोर्ट 226 में कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 32 में कर सकता है। अब ये रिट्स के मीनिंग हैं, किस पर्पस के लिए कौन सी रिट जारी होती है। हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, शेरशरी एंड को वारंटो। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर किसी को अनलॉफुली कन्फाइन कर लिया जाए, किसी को अनलॉफुली जेल में डाल दिया जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो उसकी रिहाई के लिए कोई भी लागू करवा सकता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, टू हैव द बॉडी ऑफ, हमारे व्यक्ति को छोड़ा जाए, इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, हमारे व्यक्ति को छोड़ा जाए। तो किसी को इलीगली कन्फाइन करा लिया जाए तो उसके लिए हम फाइट कर सकते हैं कोर्ट में जाकर कि व्यक्ति को अनलॉफुली कन्फाइन किया हुआ है, इनको छोड़ना होगा। तो 1 इज सी, 1 इज डी। मेंडेमस का मतलब होता है कमांड, मेंडेमस का मतलब होता है कमांड। मेंडेमस का मतलब है कि कोर्ट कह रहा है उन ऑफिसर्स को जो पब्लिक फंक्शनरी हैं, जिनके ऊपर कानून द्वारा ड्यूटी है ऐसा करने की, उनके ऊपर कानून द्वारा ड्यूटी है कि इस कानून के तहत आपको ऐसा करना है, और अगर अपना वो काम ना करें तो उनके खिलाफ कोर्ट मेंडेमस जारी कर देगा। यू शुड डू द फंक्शन फॉर विच यू हैव बीन पुट ओवर देयर एंड यू शुड नॉट डू व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू लॉफुली। कानून के तहत ये काम आपको करना है और ये काम आपको नहीं करना है। तो अगर पब्लिक फंक्शनरी से रिस्पॉन्स ऑब्टेन करना है तो हम जारी करवा सकते हैं मेंडेमस। हम अपनी शिकायतें लेके गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जाते हैं, वो हमारी बात सुनते नहीं हैं, मजबूरी में कोर्ट आना पड़ गया है, तो कोर्ट कहेगा ठीक है आपकी बात सही है। कोर्ट आदेश जारी करेगा उस व्यक्ति विशेष को, उस ऑफिसर को, कि आप वो काम करिए जो आपको बोला गया है। तो इट इज़ ए कमांड, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट टू द पब्लिक फंक्शनरी, डू द फंक्शन फॉर विच यू हैव बीन पुट ओवर देयर। दिस इज कॉल्ड मेंडेमस। मेंडेमस वर्ड का मतलब होता है कमांड। शेरशरी, शेरशरी का मतलब होता है टू करेक्ट अ जुरिडिक्शनल एरर। मान लीजिए किसी कोर्ट ने एक ऐसा केस ले लिया जो उसके डोमेन में नहीं आता, किसी कोर्ट ने ऐसा केस ले लिया जो उसके डोमेन में नहीं आता और उस पर फैसला भी दे दिया। आपने एक ऐसे केस में फैसला दे दिया जो आपका कभी था ही नहीं, आपके डोमेन में आता ही नहीं है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्म, यू आर इन्फॉर्म्ड। शेरशरी का मतलब होता है यू आर इन्फॉर्म्ड, बी इन्फॉर्म्ड, आपको सूचित किया जाता है कि आपने एक एरर कर दी है, आपने एक ऐसे केस में फैसला भी दे दिया जो कि केस आपके डोमेन में आता नहीं था, इसलिए आपका फैसला अमान्य होगा, लागू नहीं होगा, ये आपको सूचित किया जाता है। तो शेरशरी का मतलब होता है जुरिडिक्शनल एरर। को वारंटो का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति
किसी ऑफिस को ऑक्यूपाई कर ले विदाउट बीइंग एलिजिबल फॉर इट, देन देयर इज रिट ऑफ को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग ऑन दिस ऑफिस। हमको पता लगा है कि इस ऑफिस को होल्ड करने योग्य आप के लिए योग्यता आपके पास नहीं है, या तो क्वालिफिकेशन वाइज या कंडीशंस ऑफ ऑफिस वाइज। हमको पता लगा है आप क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए आपको ऑफिस छोड़ना होगा, या तो प्रूव करिए कि ऑन व्हाट कंडीशंस यू आर ऑक्यूपाइंग दिस ऑफिस। सो दिस इज दिस थिंग। फर्स्ट इज डी, 2 is C, 3 is A. First is D, 2 is C, 3 is A. This is the answer, and 4 is B. तो this is writ, and एक writ और होती है prohibition. Consider the following statement. Directive principles of state policy supersede fundamental rights in all circumstances. Part 3rd versus Part 4th. DPSP फंडामेंटल राइट से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। अब द DPSPs supersede fundamental rights in all situations, all circumstances. मतलब अगर कन्फ्लिक्ट है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, तो DPSP ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट। अगर प्राथमिकता देनी है, प्राइमेसी देनी है, तो DPSP को दी जाएगी, फंडामेंटल राइट्स को नहीं दी जाएगी। अगर कन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है, नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, DPSPs कैन नेवर सुपरसीड फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। या DPSP फंडामेंटल राइट्स को कभी सुपरसीड नहीं कर सकते। हाँ, तब कर सकते हैं अगर संविधान में दिए गए प्रोविजन से वो प्राथमिकता निकल रही है तो कर जाएंगे, वरना नहीं कर सकते। तो पहला गलत है। DPSP फंडामेंटल राइट्स को हमेशा ही प्राइमेसी में रखेंगे, सुपरसीड करेंगे, ऐसा नहीं होता। इन सम सिचुएशंस इट इज़ पॉसिबल, और ये हुआ था आर्टिकल 31C एडेड बाई 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, जब समाजवाद इस्टेब्लिश करने की कोशिश इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू डेवलप सोशलिज्म, ऑल द पॉलिसीज वर एम्ड एट एस्टेब्लिशमेंट सोशलिज्म। तब ऐसा हुआ था कि आर्टिकल 31C में, कैपिटल C है, लिखा हुआ था अगर DPSP आर्टिकल 39B एंड C को एस्टेब्लिश करने का उद्देश्य है और इनको इम्प्लीमेंट करते हुए फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो जाते हैं, तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी, फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इफ़ द लॉ, इफ़ कोई कानून बनाया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, उसका उद्देश्य आर्टिकल 39B और C को इस्टेब्लिश करना है, आर्टिकल 39B और C को इस्टेब्लिश करना है, और ऐसा करते हुए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 वॉयलेट हो जाते हैं, तो वॉयलेट होते रहें, प्राथमिकता दी जाएगी DPSP ओनली 39 स्मॉल b एंड स्मॉल c को। स्मॉल b ये कहता है कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री और कम्युनिटी शुड बी यूज फॉर द कॉमन गुड। देश के जो भौतिक संसाधन हैं वो कम्युनिटी के बेस्ट बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट्स को बनानी चाहिए। दूसरा ये कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि पैसा कुछ ही हाथों में से मटके न रह जाए, देयर शुड नॉट बी एनी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। अगर इस उद्देश्य से पॉलिसी बनाई जाती है और पॉलिसी फंडामेंटल राइट वॉयलेट करती है तो वॉयलेट हो सकते हैं, ऐसे में प्राथमिकता दी जाएगी 39B और C को। तो ये सही है। DPSP कैन नेवर सुपरसीड फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट, इसके अलावा DPSP फंडामेंटल राइट्स को सुपरसीड नहीं करेंगे, करेंगे तो बस इन 2 एरियाज में कर सकते हैं, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एज पर मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में ये प्राथमिकता रिस्टोर कर दी गई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ये लिख दिया था कि द होल पार्ट फोर्थ इज, यू कैन से, मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट 3rd। तो मिनर्वा मिल्स केस ने उसको रिस्टोर कर दिया है। नो, ओनली आर्टिकल 39B स्मॉल b एंड स्मॉल c आर मोर इंपॉर्टेंट देन आर्टिकल 14, 19, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। So these are certain questions, mix of art and culture, modern history and polity. चलिए, thanks a lot for attending this video. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।